Today we'll talk about something which, of course, all of us are something which is very usual, very routine to all of us. We experience it on a daily basis. Uh, but it has an altogether different meaning for when it comes to poor people, for the homeless people, for the people who are receiving aid, especially in the times of disaster. So I'll just quickly tell about what is the purpose of doing this Facebook Live today. As we all know, we are going through an absolutely unprecedented kind of a crisis, a health crisis, where entire world is struggling with COVID-19, and of course, there's a lot of relief work happening all around, and this is where it all started. The way we all are responding to the situation is extremely important, and how after few years, maybe 10 years, 20 years, how this particular phase would be remembered, it will a lot will depend on how we are responding today. And it was in this context that I felt it was extremely important that we have some conversation around it, about the manner in which the entire relief work is being carried out. And I'm sure as we'll progress in this session, many of you would agree and would be able to see the relevance of this conversation that we're planning to have. Uh, I'll just outline the session that we'll have now. One, I'll talk about. There are two broad things that we'll talk about today. One is the importance of giving with dignity. सो एज आई एक्सप्लेन, हम इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसके बारे में बात करना है. सो दैट इज़ वेयर विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग विद डिग्निटी. और दूसरा, एक ऐसा तबका जो हमारे efforts के बाद भी हमारे सारे जो हम रिलीफ वर्क कर रहे हैं उससे छूट जाएगा, और उसकी देखभाल करने की किस तरह से ज़रूरत है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. अ, अ, अगर हम एक शहरी गरीब, कोशिश प्राइमरीली शहरी गरीब तबके के साथ काम करते हैं, जिसमें काफ़ी मेंटली इल लोग होते हैं, अबेंडेंट लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं. तो लोग दूसरों के से हेल्प लेकर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, बेगरिंग होते हैं, डेस्टिट्यूशन होते हैं, डेस्टिट्यूट लोग होते हैं, काफ़ी परिवारों से छोड़ दिया होता है, वैसे लोग होते हैं. होमलेस लोगों के लिए जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, ये बिल्कुल भी नई नहीं है. अगर हम समझना चाहें कि ये होमलेस लोग कौन हैं, तो मैं शायद एक लाइन में ऐसे इसको कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं हमें शहर में, लेकिन फिर भी नहीं दिखते. दे द मोस्ट विजिबल येट द मोस्ट इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर सिटीज़. ये हमें हर जगह दिखते हैं. हर दिन हमारे काम पर आते जाते समय, घर आते जाते समय ये लोग हमें दिखेंगे, लेकिन कभी भी हम इनको एक्नॉलेज नहीं करते, और शायद वहाँ से ही उनकी कहानी शुरू होती है नेग्लेक्ट और डिप्राइवेशन की. जब ये लोग एक्नॉलेज नहीं होते हैं, because of not getting acknowledged, there's a denial that sets in. So there's a denial in terms of accepting their existence in our cities, especially when it comes to the government. Acceptance is extremely not there, and because of the denial, uh, the whole existence is turned into an invisible existence. So people, you see them, you don't see them. Now because of this invisibility, there's a question that comes over their ability to access any kind of citizenship, services, facilities, entitlements. Now this whole cycle where uh, people are there on the streets, they are there to be seen, but there's a denial in accepting their presence. That denial leading to invisibility of their presence, then that invisibility leading to denial, a refusal of
citizenship. Now, uh, there's only one way that homeless person deals with this kind of a scenario, and that is it all depends on the person's ability to negotiate. So one cannot say that every homeless person will have a similar experience of homelessness, because how a person experiences homelessness would depend on the person's ability to negotiate. So negotiation becomes extremely critical for a homeless person, and this negotiation happens with two kind of actors. One is state actors, the second is non-state actors. When it comes to state actors, there are police, there are authorities, there are administrative procedures. So these are the agencies which fall into the state column. Homeless has an interface with, and when it comes to non-state actors, there are employers, there are health services providers, there are general public. For a homeless person, what kind of experience a homeless person would have would largely depend on that person's ability to negotiate with all these actors. Now, as I said earlier, for a homeless person, helplessness is not an unknown emotion. However, during a time of any disaster, this feeling of hopelessness, the helplessness, it increases manifold. As it is, everyday survival is a struggle for a homeless person, but when it is times like the current ones, any disaster situation, any crisis, then it becomes extremely vulnerable, and every every single meal that the person gets, every single dose of a medicine that person gets, it is somewhere denting the pride of the person. Now, how that happens? That is something that is going to form the core of what I'm going to talk about today. अगर हम थोड़े दिनों को, अभी जब से ये कोविड 19 की सिचुएशन चल रही है, अगर हम थोड़ा याद करना चाहें, थोड़ा हम पीछे जाएं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस में हम देखें कि किस तरह से हमने लोगों को अलग अलग स्तर पे रहते हुए देखा है, किस तरह से लोगों को हमने हेल्प लेते हुए देखा है। अगर उस पूरे खाके को हम अपने दिमाग में रख के देखें तो हमें समझ में आएगा कि दो बड़े डिवीजन होते हैं, जो कि अ, एक एक जिसको हम कहेंगे स्टेट का एक प्रोटेक्टिव असिस्टेंस है, एक स्टेट की एक जिम्मेदारी है। एज अ सिटीजन आई हैव अ राइट टू बी टेकन केयर ऑफ, एज अ सिटीजन आई हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड, एंड state has the mandate to do that. Now when state does that, I don't have a problem. It is not impacting me negatively. But when it is reduced to it, when it comes to individual charity, so I call it states protective assistance versus individual charity. When it comes to individual charity, the experience that I will have will be very different. Let me give a small example to explain this. अगर किसी को अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है तो हमें खराब नहीं लगता। We feel extremely happy, we'll congratulate the person, we will we'll be very, the person will actually try, हमारे बच्चे कोशिश करेंगे कि हम हमें स्कॉलरशिप मिले, या गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है, किसी भी तरह का सब्सिडी हो, उसको लेने में हमें कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज वी सी दैट एज पार्ट ऑफ द एंटाइटलमेंट्स दैट वी एंजॉय बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। However, when the same help is extended by an individual, the experience changes. इंडिविजुअल चैरिटी जो होती है वो हमेशा एक अलग तरह का फीलिंग लेके आती है। अगर हम लोग अपने अपने खुद की अपनी पर्सनल, हम अपनी लाइव्स में जाकर देखना चाहें तो भी हमें समझ में आएगा कि आ, जब भी ऐसे 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 मौके हुए हैं जहाँ पर आ, हमको किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़ी है, तो अगर हमको वो मदद किसी ने बिना एहसास कराए हुए हमको मदद दी है, हमको अगर वो मदद हमको बिना हमें मांगे हुए मिली है, तो उसकी फीलिंग, हमारी इमोशन, उसको एक्सपीरियंस अलग होगा। और जब हमें किसी चीज़ की मांगना पड़ा है
है, वो किसी चीज़ के लिए आगे आकर कहना पड़ा है कि ये चाहिए, उसकी हमारी जो मेमोरी है वो बहुत बहुत अलग होगी। जिस तरह के हालात से आज हम गुजर रहे हैं, जैसे अभी सिचुएशंस हैं, आई थिंक एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये जब मैं देखता हूँ अपने आसपास जिस तरह से लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह से लोग जो गरीब भूखे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, उनके पास खाना लेके जा रहे हैं, वो एक बहुत बहुत आई थिंक वो शायद हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोग किसी भी तरह का क्राइसिस आने पर एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं वनरेबल लोगों को, नीडी लोगों को, डिसएडवांटेज लोगों को सपोर्ट करने के लिए। दैट्स दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो बहुत 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 मजबूत चीज़ है, वो हमारी मैं कहूँगा हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हमें किसी भी तरह की क्राइसिस को ओवरकम करने में इनेबल करती है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो हम अ, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमारा भाव क्या है वहाँ पे? Are we responding because we want to reach out to people? We want to ensure that people are safe. We want to respond because we want to ensure that people are not facing, difficulties which are unbearable. क्या हमारा मोटिव वो है, या हमारा मोटिव ये है कि चलिए हम कुछ तो करते हैं, हमने कुछ सोचा ही नहीं है हम कर रहे हैं, या हम सोच रहे हैं चलिए हम मदद कर देते हैं। मदद करने का जो एक भाव है, वो कहीं न कहीं हमको दूसरे से थोड़ा-सा ऊपर रखता है। जब हम ये सोचकर कोई किसी चीज़ को करते हैं कि वो बेचारा है, उसको हेल्प करना चाहिए, तो हम कहीं न कहीं हम उस व्यक्ति को जो हमसे मदद ले रहा है, उसको हम थोड़ा-सा हम उसको अपने से नीचे देखने लगते हैं। और ये नीचे हमेशा कॉन्शियसली हो रहा हो ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब इतने बड़े क्राइसिस में रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, तो दो तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, जिसमें कि जो होमलेस के कॉन्टेक्स्ट में मेरे साथ हो रहा होता है वो एक है कि मैं एक जनरली एक एनोनिमस लाइफ जी रहा होता हूँ, लेकिन क्राइसिस में वो पॉसिबल नहीं होता है। सोचिए, क्या आप एक होमलेस व्यक्ति क्राइसिस के समय में एक एनोनिमस लाइफ जी सकता है? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। जो रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज स्केल रिलीफ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो कैजुअलिटी होता है वो अनफॉर्चुनेटली डिग्निटी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम सारे लोग अपनी खुशी में या इस सुकून में कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम फोटो लेने लग जाते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है फोटो खींचना। अगर हमें अगर हमको फोटो ठीक नहीं आया, शायद हम उस व्यक्ति को बोलेंगे आप दोबारा से खड़े हो जाइए। हम उसको खाने का पैकेट देते हैं, उसको फोटो देते हैं। मेरे कुछ साथियों के साथ थोड़े दिन पहले मैं इस बारे में बात कर रहा था, तो अ, उन्होंने कहा कि लेकिन वो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे हम एक सामाजिक संस्था है, उसी तरह से वो मेरे दोस्त हैं जो अ, एक दूसरी सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम अपने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे? इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेक दीज पिक्चर्स। वहाँ से मुझे लगा कि ये जो रिलीफ है, इसका जो रिस्पॉन्स है, उसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो हम एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर मदद किसी को कर रहे होते हैं, दूसरा एक संस्थागत तौर पर जो हम कर रहे होते हैं। जब हम व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं तो हमें समझना है कि हमारा अपना ड्राइव क्या है, व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग अस टू डू दैट। हमको किसी ने कहा नहीं आके कि जाइए आप फला फला व्यक्ति की मदद कर दीजिए। हमसे किसी ने कहा नहीं कि आप अपनी सेविंग्स निकाल के किसी को दे दीजिए जाके। फिर क्यों जा रहे हैं हम? क्या है ऐसा जो हमको ले जाने के लिए आप ये कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि नहीं हमें जाके किसी की हेल्प करनी है? एक सोच कर देखिए, वो भूखा व्यक्ति जिसको हम एक खाने का पैकेट दे रहे हैं और फिर हम उसको कह रहे हैं कि एक आपके साथ फोटो लेना है, हमारी नीयत खराब नहीं है। और मैं ये इस बात का मैं बहुत जोर देना चाहूँगा कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जो लोग
जो रहे हैं फोटोज ले रहे हैं उनकी नीयत खराब नहीं है, वो मदद करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से मदद कर रहे हैं, उनको फिक्र है लोगों की। लेकिन क्या हमारा फिक्र करना काफ़ी है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जिसके लिए हम फिक्रमंद हैं वो भी सेम एक्सपीरियंस कर रहा है? शायद नहीं। वो शायद हमारे साथ फोटो इसलिए खींच रहा है क्योंकि वो भूखे पेट है। मेरे एक साथी ने, एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि लेकिन हम कंसेंट ले लेते हैं, हम पूछ लेते हैं उनसे कि हम फोटो ले लें। साहब, जो व्यक्ति भूख से परेशान है, जिसको कई दिन से खाना नहीं मिला है, उससे क्या हम कंसेंट की बात कर रहे हैं कि हम कंसेंट ले लेते हैं? क्या वो इस स्थिति में है, इज द पर्सन इन दैट पोजीशन टू से नो कि नहीं हम फोटो नहीं खींचेंगे? अनफॉर्चुनेटली जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम देने के भाव से ही देते हैं, हम देने के भाव से देते हैं। और यहाँ पे ही मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे सारे अच्छी फिक्र को, हमारे पॉजिटिव इमोशंस को, जो हमारा जज्बा है, हमारे नीयत है हमारी कि हम किसी को जाके उसके साथ खड़े हों, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमीन कर देती है। हमें उसको, उसकी मदद करनी करनी है या उसके साथ रहना है, ये तय करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे जो कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं कि हमको अपने रिकॉर्ड्स हमको करने हैं। मैं खुद तकरीबन 14 साल से एक संस्था चला रहा हूँ। मुझे अ, मालूम है रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए किस तरह के सवाल आते हैं, मुझे मालूम है कि किस तरह की परेशानी आती है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात के तौर पे अपनी बात रखते हुए हम रिसोर्सेज ना ला सकें। हम जो काम हमें जिस तरीके से करना है, हमारे काम करने की वजह हमारी हमारा इरादा होना चाहिए कि हम लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, हम एक बेहतर हालात तैयार कर मदद करना चाहते हैं, ना कि ये कि एक प्रोजेक्ट है और हमें किसी को जवाब देना है। शायद कहीं न कहीं हम अपने ज़हन में फंडर्स को या जो लोग हमें पैसे दे रहे होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो अहम हैं, बिल्कुल अहम हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है हम जो वो काम कर रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू बैक आवरसेल्व्स, वी नीड टू बैक आवरसेल्व्स विद आवर अप्रोचेज़, आवर बिलीव्स इन लाइफ़ कि हम क्यों आए हैं ये काम को करने के लिए। और अगर एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाता है, वो सॉर्टेड है दिमाग में, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। अ, एक डिज़ास्टर के समय में एक बहुत एक पिक्यूलियर चीज़ होती है। ह्यूमनाइज़ जो एक 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 ह्यूमिलिएशन होता है वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ह्यूमिलिएशन नॉर्मलाइज़ कैसे होगा? आप इमेजिन कीजिए कहीं पर खाना बाँटा जा रहा है और एक लंबी सी लाइन लगी हुई है लोगों की। आप खुद वहाँ खड़े होंगे, आपके वॉलंटियर्स खाना बाँट रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है खाना बँट रहा है, थोड़ा chaos होगा। जिसको हम कहेंगे लोग समझते नहीं हैं, टूट पड़ते हैं। ऐसे बेसब्रे हैं कि टूट पड़ते हैं। साहब वो बेसब्रे नहीं है, उनकी मजबूरी है। क्योंकि हमने उनको इस बात का एश्योरेंस नहीं दिया है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। क्या हमने ये कहा है कि आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ में? क्या हमने ये क्लियरली कम्युनिकेट किया है? क्या हमने ये कहा है कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे? तो जो वो लाइन लगती है, मैं बात कर रहा था कि ह्यूमिलिएशन कैसे नॉर्मलाइज और एक्सेप्टेबल बन जाती है क्राइसिस की सिचुएशन में। एक लंबी लाइन लगेगी, हमारा वॉलंटियर एक जोर का धक्का देगा लाइन को और 8-10 लोग गिरेंगे। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने जो डिजास्टर सिचुएशन में काम किया होगा उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी। वो जो हम जोर से धक्का दे देते हैं और कुछ लोग उसमें गिर जाते हैं, वो ह्यूमिलिएशन है लोगों के लिए। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए खाना ले रहा है, उसको एक पैकेट खाने का मिल गया है, वो थोड़ा आगे आया इस हिम्मत को करके कि
मैं थोड़ा खाना बच्चों के लिए भी ले लूंगा या वाइफ के लिए ले लूंगा, घर में परिवार में और लोग होंगे। हो सकता है हमारा वॉलंटियर बिना उसकी बात सुने उसका हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के साइड कर दे, तुमको मिल गया ना, चलो यहां से। जो मिल गया है चलो यहां से वाला जो हमारा सवाल है, ये ह्यूमिलिएशन है। तमाम सारे लोग खुद बाहर नहीं आते हैं, वो बच्चों के भेज देंगे। आप अगर ध्यान दें तो आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपने बहुत समय देखा होगा, इवन जब नॉर्मली भंडारा वगैरह भी बढ़ता है, कोई लंगर बढ़ता है, तो हम देखते हैं जो अ, बच्चे आते हैं तो हम बच्चों को एक तरफ साइड कर देते हैं कि बच्चों हटाओ, पहले यहाँ से बच्चों को भगाओ। उस बच्चे को भगा दिया हमने, हमारे लिए शायद वो 10 मिनट का जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा कन्वीनियंट बन, थोड़ा सा केओटिक कम हो गया, लेकिन हमने शायद किसी बच्चे के मन में एक ऐसी याद छोड़ दी है जो उसको हमेशा हमेशा परेशान करती रहेगी। हमको किस तरह की चीज़ें याद रहती हैं? वो चीज़ें, या वो चीज़ें जिन्होंने हमको बहुत अच्छा खुशी का एहसास किया दिलाया होता है, या वो चीज़ें जो हमको बहुत परेशान की होती हैं। आज अभी हम जिस सिचुएशन में हैं वो एक तरह से इट्स लाइक अ हिस्ट्री इन मेकिंग। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बन रही होंगी। आज एक हम बहुत बड़े आपदा से गुजर रहे हैं, आज हम इससे कैसे कैसे इसको कैसे लड़ रहे हैं, कैसे हम डील कर रहे हैं, इसको कैसे सामना कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए ये एक कहानी होगा, ये एक पढ़ने का विषय होगा, ये एक याद करने का विषय होगा। सारा सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं कि लोग कैसे याद करें इस फेज को, इस दौर को। जो लोग मदद ले रहे हैं वो लोग इस दौर को आने वाले समय में आज से 5 साल 10 साल के बाद कैसे याद करेंगे, हम कैसी याद छोड़ना चाहते हैं, ये सारी बात इस चीज़ के ऊपर है। क्या हम चाहते हैं कि वो लोग इस दौर पे याद करें? एक बड़ा बुरा दौर था, बिल्कुल था, वो बदलेगा नहीं, एक बहुत बुरा समय था। उसकी दो कहानियां, दो तरह की कहानी बन सकती है। एक बहुत बुरा दौर था लेकिन हमारे लोग हमारे साथ थे, ऐसा समाज था। बड़ा बुरा, बहुत बुरा समय था, महाकाल बिल्कुल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे, ऐसी बीमारी फैली थी, लेकिन हर तरफ लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे। एक कहानी ये हो सकती है, एक कहानी ये हो सकती है, बहुत बुरा समय था, एक एक वक्त के खाने के लिए 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। ऐसी मजबूरी महसूस होती थी, वहां जाते थे लाइन में, लोग भगा देते थे, लेकिन क्या करें, फिर जाना पड़ता था। तो सवाल हमारे आगे ये है कि हम किस तरह की कहानी आज लिखना चाहते हैं। आज जिस तरह से हम इस हालात को रिस्पॉन्ड करेंगे वो एक हम कहानी लिखेंगे जो आगे आने वाले समय में 5 साल 10 साल के बाद उस कहानी को पढ़ा जाएगा। इसमें अ, एक रिलेशंस है इंसान के, और उसको मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूँगा कि कैसे अलग अलग लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग रोल्स में उसको समझना किस तरह से ज़रूरी है। अ, मैंने एक फ़ोटो वाली एक बात कही, उसी से एक जुड़ी एक दूसरी बात है कि शायद जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं, हम फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो तमाम सारे और लोग इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुसीबत इतनी बड़ी है कि जितने ज़्यादा हाथ उसमें आगे आएँ उतना अच्छा होगा उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए। लेकिन अगर सवाल इंस्पायर करने का है, तो क्या इंस्पायर करने के लिए हमारी कहानी ज़रूरी है ने? ऐसा है क्या कि इंस्पायर करने के लिए कहानी हमारी होनी चाहिए? क्या ये कहानी उन लोगों की नहीं हो सकती है जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, हमारी ही तरह वो भी इसका सामना कर रहे हैं और
अपने स्तर पे जो उनके लिए मुमकिन है वहाँ पर बाँट रहे हैं। वहाँ पे यू विल सी लाइक ह्यूमन साइज़ ऑफ एक्सट्रीमली डीप लेवल्स। और मैं उसके बारे में भी एक एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हम अपने इर्द-गिर्द देखेंगे तो हमें दिखेगा जिसके पास कुछ नहीं है या बहुत थोड़ा है, वो भी लोगों में बाँट रहा है, लोगों के साथ बाँट रहा है वो। अगर बात इंस्पिरेशन की है, तो क्या उन लोगों की कहानी हम नहीं कह सकते हैं जो लोग खुद उनके पास कुछ ना होते हुए भी दूसरों का ध्यान रख रहे हैं? अगर उद्देश्य हमारा सिर्फ इंस्पायर करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कहानी इसलिए बताते हैं, हम अपने पिक्चर्स इसलिए डालते हैं सोशल मीडिया पे क्योंकि उससे और लोग मोटिवेट होंगे। मोटिवेट करना ज़रूरी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि उस मोटिवेशन के लिए क्या कहानी, हमारी कहानी ज़रूरी है या उन लोगों की कहानी हो सकती है। मैं इसमें एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा। हम लोग दिल्ली में एक कम्युनिटी में काम करते हैं जहाँ पे लोगों के पास बहुत बहुत थोड़े साधन हैं। रोज़ की मज़दूरी करना है, उसके हिसाब से वो उनकी कमाई होती है। तो जब जैसे अभी रोज़गार बंद है तो लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल मुश्किल, बहुत परेशान हाल में लोग हैं। थोड़े दिन पहले हमारे राशन की कुछ सप्लाईज़ वहाँ पर आए और अनफॉर्चुनेटली जो साहब जो ट्रक लेकर आए, टेम्पो लेकर आए, उसमें उन्होंने समय पे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया और उन्होंने बिल्कुल कम्युनिटी में पहुंचने से ठीक थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉल किया मेरे साथी प्रेम को कि हम यहाँ 10 मिनट में, 15 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो हमारी कम्युनिटी में हमने अपने काम के ज़रिए से कुछ मजबूत वॉलंटियर्स, वहाँ पे एक लोकल लीडरशिप है, वहाँ के जो नौजवान हैं उनको कांटेक्ट किया गया। उनको बोला कि आप ये सारा राशन रिसीव कीजिए और देखिए कि बस्ती में कौन कौन से लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको फ़ौरन इसकी ज़रूरत है। थोड़े दिन पहले वहाँ पर हमने राशन दिया था और कुछ और ग्रुप्स आए, वो भी राशन दे गए थे। इन बच्चों ने, जो वहाँ की यूथ है, उन्होंने मीटिंग की, कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उनको बुलाया, उनके साथ बैठ के मीटिंग की, इस बात पे चर्चा की और उन्होंने कहा कि हमारे पास राशन है जो अगले कुछ दिन चल जाएगा। लेकिन उनकी जानकारी में कुछ और परिवार थे पास में, बस्ती के नज़दीक पास में, जहाँ पे 40-50 परिवार थे जिनको कुछ भी नहीं मिला था। इन बस्ती के लोगों ने तय किया कि ये राशन हम नहीं रखेंगे, ये राशन हम सारा बांट देंगे लोगों के बीच में। ये वो लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, खाना नहीं था, जिनके पास खुद खाना अगले 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो उनको फिर किसी से मांगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये तय किया कि हम, जिनके पास आज का भी खाना नहीं है, हम उनके साथ बांटेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग कोई कहानी हो सकती है। इस तरह की कहानी से ज़्यादा किसी एनजीओ की कहानी हो सकती है, किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की कहानी हो सकती है। साहब, कहानी कहानी कहना ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी कहानी कहें ये कतई ज़रूरी नहीं है। किसी भी डिज़ास्टर की सिचुएशन में एक जनरली सिविलियंस के साथ होता है, लेकिन इट्स इवन ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर दी होमलेस पीपल। कैसे ड्यूरिंग अ क्राइसिस सिचुएशन होमलेस पर्सन सरेंडर्स और हर राइट्स। अब आप कहेंगे सरेंडरिंग ऑफ राइट्स कैसे होता है? वायलेशन जब नॉर्मलाइज हो गई, उसके पास मैंने स्टार्टिंग एक बात कही थी, होमलेस व्यक्ति की एबिलिटी टू नेगोशिएट की, वो कितना नेगोशिएट कर पाता है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ में, वो बात तय करती है कि वो एक कैसी जिंदगी सड़क पे जी रहा होगा। तो वो जो उसकी क्षमता होती है नेगोशिएट कर पाने की, वो हर दिन, उसका हर दिन वो किसी के साथ एक नेगोशिएशन में हो रहा होता है। उसको हर दिन जीने के लिए एक
मोल भाव करना पड़ रहा होता है, उसको एक छोटी से छोटी सुविधा के लिए मोल भाव करना पड़ रहा होता है, उसके हिस्से की चीज़ें छीनी जा रही होती हैं और उसको उनमें से कुछ को रिटेन कर पाने के लिए, एक्सेस पाने के लिए मोल भाव करना होता है, उसको बेसिक बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी उसको मोल भाव करना पड़ता है। तो जो मोल भाव नहीं कर पाता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, जो मोल भाव कर लेता है, जो सीख लेता है सड़क पे रहने के तरीके, वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन क्राइसिस के समय में ये अधिकार जो है उसके चले जाते हैं। जैसे बीटिंग्स जो हैं, बहुत असॉल्ट्स हैं, बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। कोई भी आराम से वो खाना मांगने के लिए भी जा रहा है वो, तो भी उसको आराम से कोई भी आके मार देगा उसको। दैट पर्सन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हर वक्त उसके ऊपर किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है, इस बात का उसको एक डर है। कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर अ फियर ऑफ एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन। There is a normalization of violations. Every now and then there are violations taking place, but all those violations are normalized. हम लोग भी जो एक सिविल सोसाइटी के तौर पे उन वायलेशंस को हम विटनेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट नहीं करते। नॉर्मलाइजेशन का एक्सटेंट वो होता है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे रोल पे? किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है? क्या उसको वो दे रहे हैं जो उसको चाहिए, या वो दे रहे हैं जो हम देना चाहते हैं? ठीक है, मैं घर में रोटी खाता हूँ तो मैं रोटी दूंगा राशन के पैक में। मैं पूछना ज़रूरी नहीं समझता कि क्या उस व्यक्ति को चावल चाहिए। छोटी सी चीज़ है, चॉइस। बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम लोग चॉइस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने कहा छोटी सी चीज़ है। क्या दिया जा रहा है, बस क्या ज़रूरत है? क्या हम वो दे रहे हैं जो व्यक्ति की ज़रूरत है, या हम वो दे रहे हैं जो हमें देना ठीक लग रहा है? हम तय कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ के बारे में हमारा हर फैसला जो है, लेने की जो हमारी क्षमता है, वो हमारी क्षमता क्राइसिस के समय चली जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि हम दो निवालों के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक अजीब सा एक अनसर्टेनिटी का डर रहता है। हमें मालूम नहीं है अगला खाना कहाँ से आएगा। और जो हम बात कहते हैं, अक्सर हम ब्लेम करते हैं लोगों को, गरीब व्यक्ति को, कि उसको मालूम है रोज बांटने आ रहे हैं फिर भी ऐसा टूट पड़ता है, बिल्कुल भगदड़ मचाता है, बिल्कुल लूट पटा मचा देता है। हमारे लिए लूट है वो। हम कभी सोचा कि दिन में 2 वक्त खाना खाने के लिए उसको 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सुबह 2 घंटे लाइन में खड़ा होता है तो उसको एक डब्बा खिचड़ी मिलता है, शाम 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़ा होता है तो एक डब्बा खिचड़ी होता है। हम चाहते हैं कि पूरा परिवार लाइन में खड़ा हो, क्योंकि हम कहते हैं एक व्यक्ति को एक डब्बा देंगे। क्योंकि हम दे रहे हैं, हम देने वाले हैं, तो खेल के जो नियम है वो हम तय करते हैं। तो जो पूरा क्योस है ये, आ, जो क्योस है वो क्योस काफ़ी कुछ हमारा अपना बनाया हुआ होता है। उस व्यक्ति की फीलिंग है कि मैं कितना इनसिग्निफिकेंट हूँ, कितना गैर ज़रूरी इंसान हूँ मैं, ये क्योस उस फीलिंग को और बढ़ावा देता है। किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा हीरो कौन होता है? उसके माँ बाप। जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड सीइंग her parents abused, beaten up every day, standing in a queue to fetch some food. क्या ये अच्छी याददाश्त होगी उस बच्चे के लिए? ये तो हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो
अच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे लोग परेशान ना रहें। जो दूसरी साइड लोग हैं उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तमाम सारे लोग हैं जो सर्वाइव करते हैं लोगों के सपोर्ट पे। कभी सोचा है जो सड़क पर सिग्नल पे एक मेंटली इल व्यक्ति पड़ा रहता है, उसको खाना कैसे मिलता है, उसको पानी कैसे मिलता है? शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है हाउसिंग सोसाइटी का, वो लाके बोतल में पानी दे देता है। लेकिन ऐसे समय पे तो हम किसी को अंदर भी नहीं आने देते, हमने उसको दूर कर दिया है। तो जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं क्राइसिस के समय। डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन ऊपर चला जाता है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है। जो इनसिग्निफिकेंट होने की जो फीलिंग है वो फीलिंग कई गुना बढ़ जाती है। इसको कैसे कैसे इसको हमें इसको हम कैसे एडजस्ट करें? बहुत छोटा सा सल्यूशन है इसका, अगर हम उसको समझ के तो। भरोसा। कैन वी ट्रस्ट पीपल? कैन वी ट्रस्ट पीपल विद देयर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस फॉर देयर लाइव्स? मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला कि उसके राशन पैकेट में चने की दाल जाएगी या तुअर दाल जाएगी? मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला कि वो अगले 15 दिन वो व्यक्ति सिर्फ चावल खाए या आटा भी खा सकता है? एक बच्चा, शायद उसके पिता उससे कह रहे हैं कि बेटा मुझे जिस दिन काम मिलेगा हम जाएंगे, कुछ तुम्हारे लिए हम लेकर आएंगे। उसने एक 2 रुपए की टॉफी मांगी, एक चॉकलेट मांगी। चॉकलेट का मतलब उसके लिए 2 रुपए की, 1 रुपए की टॉफी है। बिस्किट मांगा। तो और ये मेरे साथ हुआ। मेरे साथ मैं कुछ दो लोगों को अपने साथ लेकर गया था कि आप लोग चल के साथ में राशन ले लीजिए और हम लोग आके दे देंगे। वो बच्चा आया और अपने फादर को बोलता है कि चॉकलेट नहीं लाया। आई वाज वेरी, ये हुआ। मैंने बोला गलती हो गई, बच्चों के लिए ले लेना चाहिए था। तो जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो ना उसको बोला था जब काम पे जाएंगे तो तुम्हारे लिए ले आएंगे बिस्कुट और चॉकलेट। तो अभी आज राशन लेकर आए हैं ना, तो उसको लगा है कि काम मिल गया है। Can you imagine the feeling of helplessness that person must be have feeling that time? उसको अपने बच्चे के सामने कितना हेल्पलेस, कितना मजबूर उसको महसूस हुआ होगा। हमने उसको खाना दिया, हमें जो ज़रूरी लगा हमने वो दिया, लेकिन हम उसके मन से, उसकी उसकी लाइफ से उस बेबसी के एक्सपीरियंस को नहीं निकाल पाए। उसको फिर भी वो एहसास वैसा ही हो गया। और अगर हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा जो है अपने माँ बाप को जो एक सबसे बड़ा लाइफ में हीरो समझता है उसको मजबूर नहीं समझे, कि हमने कोशिश ये की है कि हम नहीं चाहते लोग लाइन में खड़े हो, तो हमने कहीं भी वैसे उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। हमने कहा आप दुकान से जाइए, जो आपको सामान लेना है ले लीजिए, और हमने दुकान में पेमेंट्स किए और हमें काफ़ी दुकानदारों ने सपोर्ट किया। इवन जिन लोगों के पास में जिनको हमें कैश देना था, हमने दुकानदार से कहा कि आपके पास हम पैसे आपके अकाउंट में डालते हैं, आप उनको जो सामान चाहिए वो दे दीजिए और कुछ आप पैसे दे देंगे क्या? तो सबने दिए। ऐसा किसी भी दुकानदार ने मना नहीं किया। तो बहुत लोगों ने उसमें सपोर्ट किया। जब हम ये चीज़ की वो व्यक्ति सामना कर मांगे और फिर हम उसको दें, बस परेशानी यहाँ आ जाती है। सामने आकर मांगे और हम उसको दें। किसी साथी ने एक सवाल किया है कि फोटोज के बारे में, कि लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो इंस्पायर करता है दूसरों को काम करने से। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, शायद ये साथी मिस किए, मैं दोबारा उसको क्विकली बता देता हूँ। अ, बिल्कुल हम फ़ोटो ले सकते हैं। हम फ़ोटो कैसे ले सकते हैं? जब हम राशन हम बाँट रहे हैं या कोई भी रिलीफ सप्लाइज़ दे रहे हैं, जब हमारी सप्लाइज़ आती हैं, लेट्स टेक पिक्चर्स फॉर हमारे स्टॉक का फ़ोटोज़ ले सकते हैं हम। हमारे वॉलंटियर्स हैं जो उन पैकेट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम उनके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। हम हम सामान ला रहे हैं, उसकी लोडिंग अनलोडिंग होती है, हम उसके उसके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। और हम अगर वो कहानी कह रहे हैं कि
लोग यहाँ पे हैं और इस तरह की ज़रूरत है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब मैं किसी बड़े इंसान के हाथ में एक पैकेट अनाज का पकड़ा रहा हूँ और फिर उसका फ़ोटो खींच रहा हूँ, वही इंस्पायर करेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है, मुझे पर्सनली वो इंस्पायर नहीं करता है, मुझे वो शर्मिंदगी का एहसास कराता है। I've never felt inspired by looking at the picture जहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति जो है छोटा सा एक खाने का पैकेट पकड़ा हुआ है, राशन का पैकेट पकड़ा हुआ है, कोई किसी का डब्बा पकड़ा हुआ है, उसमें देने वाला खड़ा हुआ है उसको पकड़ के, और साथ में 4 लोग खड़े हुए और फोटो खींच रहे हैं। मुझे आज तक ऐसी किसी पिक्चर ने कभी इंस्पायर नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि वो पिक्चर्स किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। हमारी ज़रूरत है फ़ोटो लेने की, तो हम अपने स्टॉक्स की फ़ोटो ले लेते हैं, हम अपने वॉलंटियर्स, मुझे मेरे वॉलंटियर्स की फ़ोटो इंस्पायर करती है। जब मैं देखता हूँ कि बड़ी मुश्किल के समय में जब कोई काम नहीं कर पा रहा है, रिस्क है, हर तरह की परेशानी है, पर हमारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो लगे हुए हैं, बिल्कुल बिना थके हुए दिन रात काम कर रहे हैं, मुझे वो फ़ोटो इंस्पायर करेगा। जब हम रसद उतार रहे हैं टेम्पो से, हम कहीं जा रहे हैं, हम रात में निकल रहे हैं, हम किसी को कोई ठंड में पड़ा हुआ है, हम उसको कवर कर रहे हैं, तो मुझे इंस्पायर करेगी वो चीज़ कि कैसे हम उसको उसकी देखभाल कर पा रहे हैं, मुझे वो पिक्चर इंस्पायर करेगी। मुझे अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने टीम के साथ मुझे पिक्चर इंस्पायर करेगी, क्योंकि वो फोटो देखते ही मुझे याद आएगा कि यस, ये वो समय है। दूसरों को भी जो है, दूसरों को हमें सिर्फ कम्युनिकेट करना है, और सवाल सोशल मीडिया पे शेयर करने का नहीं है। एक साथी ने कहा कि हम फोटो तो ले लेते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, लेकिन हम उसको कहीं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हैं। साहब, जिसकी हम फोटो ले रहे हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होगा, उसकी तकलीफ आपका फोटो सोशल मीडिया पे जाने से नहीं आ रही है, उसकी तकलीफ आ रही है जब उसका फोटो खींचा जा रहा है, जिस वक्त उसको कहा जा रहा है कि उसको फूड का पैकेट दिया और उसको उसको खड़ा किया और बोला 2 मिनट ऐसे देखिए, सामने देखिए आप, उस वक्त उसके अंदर जो उसको जो एहसास हो रहा है, एक हेल्पलेसनेस का, एक बेबसी का, तकलीफ उसकी है। तकलीफ सोशल मीडिया पे फोटो जाने की नहीं है, उसको तो वो तकलीफ हो गई, उसको तो दुख हो गया। वो ये हमारे ऊपर है कि हम एम्पैथी क्रिएट करना चाहते हैं या हेल्पलेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हम जिसकी मदद हो रही है उसके उसके सामने ये याद देना चाहते हैं उसको कि किसी ने मेरी फिक्र की, या किसी ने मुझे दिया। कि क्या हम, जब मैं याद करूं इस बुरे वक्त को, मैं ये सोचूं कि मेरे साथ बहुत बुरा समय था, लेकिन लोगों ने, बहुत बहुत लोग, किसी ने एहसास नहीं होने दिया, लोग बड़े बड़े एक दूसरे के साथ थे, और इस ढंग से उसको उसका सामना किया गया। एक एक इंसान के लिए लोग खड़े हुए थे, लोगों ने अपने आप को पूरा के रख दिया। वो मैं देना चाहता हूँ, या मैं ये देना चाहता हूँ कि कोई आया था वो दे गया था। समय बहुत खराब है, नो डाउट अबाउट इट, टाइम्स आर वेरी रफ, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ऐसे बहुत से सिचुएशंस आई होंगी जब हमारे पास हालात बहुत बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन उनको हम सामना कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वक्त बहुत ख़राब है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बुरे वक्त का हम सामना कैसे कर रहे हैं। अभी एक साथी ने सवाल किया है चॉइस के बारे में, कि क्या अप्रोप्रिएट वे होगा इसको करने का। हमने अपनी समझ से कुछ चीज़ें की थी, वो मैं यहाँ पे आपके साथ बताना चाहूँगा कि हम खूब ढेर सारा राशन खरीदें, ले जाएं, लोगों की लाइन लगवा कर बांटें,
उसकी जगह पे हमको ये लगा कि हमने जो छोटे-छोटे दुकानदार थे, जहाँ लोग रह रहे हैं उसके आस-पास, उनसे बात की। उनसे कहा कि जो साथी आपके पास आएँगे, जिसके पास हम उनको कूपन दे के रखेंगे, आप उनको सामान दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे ये मानना चाहूँगा कि हमें भी समझ में ये था कि हमने पहले जो हमारी समझ से ज़रूरी चीज़ें थीं, वो हमने तय करी उस किट में और उसको हमने बता दिया। हम कम्युनिटी के लोगों के पास गए, हमने उनको कहा कि आप जाइए, इस दुकान से आप जाके सामान आप ले लीजिए। एक तरीका ये है, आप इस तरह से दें, खामोशी से आप एक एक टोकन आप दे सकते हैं, एक कूपन, एक अपना विजिटिंग कार्ड के पीछे साइन करके दे दीजिए आप। वो दुकान से जाके सामान ले लेगा। एक अगर आप मसला है कि आप सामान देना चाहते हैं। हमने बहुत जगह पे ये किया कि हमने बोला आप फला दुकान पे चले जाइए, आपको जो ज़रूरत का सामान है वो ले लीजिए। अगर हमारे पास पैसे का एक हमारा कंस्ट्रेंट है कि हम इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, वो आप बता सकते हैं कि इतने आप इतने इतने पैसे का इतने आप सामान अपनी ज़रूरत का जो भी सामान है इतने पैसों में आप ले लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, और मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ये है कि जो बच्चे हैं आज के वक्त के बच्चे हैं, आने वाले वक्त पे वो ये बच्चे इस ट्रेजेडी को, इस डिज़ास्टर को कैसे फेस कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री का फ्यूचर भी डिटरमाइन करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ उनकी जो मेमोरीज हों वो पॉजिटिव मेमोरीज बन सकें किसी भी तरह से। हालात बहुत नहीं बदल सकते हैं, बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो जो तकलीफ है वो तकलीफ कम नहीं होगी, लेकिन कम से कम इस बात का हम एहसास दे सकें कि उस तकलीफ में वो अकेले नहीं थे, उनकी कोई फिक्र कर रहा था। उनके माँ बाप को कहीं किसी भी तरह से हम ये कर सकें कि उनको वीक ना लगे, क्योंकि वो एक जो डैमेज होगा रिलेशनशिप में वो शायद इररिपेरेबल डैमेज होगा। और जब हम मैं शायद सोच रहा हूँ कि मैं 1 महीने का राशन दे देता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने अच्छा सोचा उस व्यक्ति के बारे में कि मैं 1 महीने का राशन दे सकता हूँ, और मैंने उसको राशन दिला दिया दुकान से। लेकिन दोस्तों ये जो लोग हैं, ये कभी भी राशन 1 महीने का लेके घर नहीं जाते हैं। ये मज़दूर मेहनतकश लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रिक्शा वाले लोग हैं, मज़दूरी करने वाले हैं, हमाली करने वाले हैं, सड़क पे सामान ढोने वाले लोग हैं। रोज़ कमाते हैं, रोज़ सामान ले जाते हैं। आपने इनको जितने भी रिस्पेक्टफुली दिया हो, लेकिन आपने जो इनको एक बड़ा सा थैला दे दिया सामान का, जिस वक्त वो थैला ये अपने घर लेके पहुंचे, भेद उसी वक्त खुल गया कि ये तो कहीं से मांग कर लाए हैं, ये खरीद कर नहीं लाए हैं। क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी खरीद कर नहीं लेके जाता है इतने बड़े क्वांटिटीज में। हमने तो लोगों को, बहुत से लोगों को हमने पैसा दिया है। इस पे तमाम सारे साथियों ने, दोस्तों ने बोला कि अब कैश दे रहे हो यार, लेकिन फिर कैश मिसयूज करेगा। बड़े दुख की बात है कि हमको लगता है हम कुछ दे रहे हैं ना, तो हम, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि देने वाला खुदा समझता है अपने आप को। हम ही सब कुछ तय करेंगे। शायद मैं अपने रिकॉर्ड में लिखूंगा कि मैंने 10 परिवार को 10 दिन का खाना दिया। मिस यूज क्या होगा, वो 10 दिन का खाना 15 दिन में खाएगा। तो शायद जो मैं लिख सकता था, हमने 10 परिवार 15 दिन का खाना दिया, मैं सिर्फ 10 ही दिन लिख पाऊंगा, वो नुकसान है। मेरे एक, हमारे जो हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो, उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी, तो मैंने बोला मैं तो क्या दे रहा हूँ लोगों को, उसको दूध चाहिए, महिला को सैनिटरी पैड चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा है। लोग पहले बिल्डिंग के अंदर से जाके पानी ले लेते, ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज है। लोग बिल्डिंग के अंदर से पानी ले लेते थे, आज कोई बिल्डिंग में घुसने नहीं दे रहा है। सिक्योरिटी गार्ड लाके बिल्डिंग का पानी दे देता था, आज वो हाथ नहीं लगाने दे रहा है, ठीक है। कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं है महिला को से, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे मांगे पहले सैनिटरी पैड, फिर हम देंगे। या बच्चे को दूध चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमसे मांगे कि सर 100 रुपए दे देंगे। हम चाहते हैं कि वो हमसे बताए कि मैं बीमार हूं। हम चाहते हैं कि वो हमसे कहे कि सर वो बच्चा जो है, और उसको शर्म आएगी, क्यों, क्योंकि वो जो जो
अगर उसको 5 रुपए का बिस्किट चाहिए, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब खाने के लिए नहीं है तो बिस्किट कहाँ से, वो तो लग्ज़री हो गया। तो हम चाहते हैं कि वो बोले कि सर, हमको थोड़ा-सा दाल कम दिला दीजिए, एक बिस्किट दिला दीजिए, मेरा बेटा बार-बार वही माँगता है। आई थिंक आई थिंक वी नीड टू ट्रस्ट पीपल। We need to trust people. We need to believe that these are the people who can make best decision for themselves. हमारी अपनी एक कैपेसिटी हो सकती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा मदद करने की, साथ देने की। जो हमारी कैपेसिटी उसके हिसाब से हम जाएं, हम चुपचाप उसके उसके दुख में उसके साथ खड़े हों, उसको बोलें आप अकेले नहीं हो, आप परेशान मत हो। सिर्फ ये मैसेज हम कम्युनिकेट कर दें कि अगर आपको कोई ज़रूरत है आप मुझे याद कर सकते हैं। अभी एक सवाल है कि स्टेट का जो रिस्पॉन्स है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, उसके लिए ये है। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर अगर देखा जाए तो। आई मीन, एनजीओ सिविल सोसाइटीज हैव बीन प्रोवाइडिंग food and other relief material to much higher number than the state has been doing. Having said that, states are also clueless कि करना क्या है, प्रिपेयरनेस नहीं है। uh, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे जितने भी अ, जो हमारे वी आर पार्ट ऑफ नेटवर्क्स, जहाँ पे हम लोग बड़े शहरों में जो नेशनली जो कॉल्स आ रही हैं उसको अटेंड कर रहे हैं, रिलीफ पहुंचाने के लिए, बेसिकली मेनली राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा एक एक उसमें मेरा मानना है कि जितना हम इमीडिएट स्तर पे हम बिल्कुल रिलीफ पहुंचाने के लिए जो हम कोशिश करें, लेकिन साथ में हम हर उस रिक्वायरमेंट को स्टेट के जो मैकेनिज्म्स हैं, एजेंसीज हैं, उस पर रेज करते रहें, ताकि जो रियल नीड है वो स्टेट में कंप्यूट होती रहे। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स कह रहे हैं कि एवरीबडी इज टेकन केयर ऑफ, लेकिन वो एवरीबडी इज टेकन केयर ऑफ बाय हुम? क्योंकि काफ़ी बड़े तादाद में जो आप और हम जो समाज के लोग हैं, हम जो आगे बढ़ के हम लोग उस जिम्मेदारी को बांट रहे हैं। हमें बांटना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें स्टेट के जो एजेंसीज हैं, उसको जो स्टेट के सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कराना चाहिए। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव बीन डूइंग दैट। आज हम कई हज़ार लोगों को मील्स, रोज़ डेली मील सप्लाई हो रहे हैं थ्रू स्टेट सिस्टम्स विच वी हैव काइंड ऑफ। इनिशियली हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बट वी केप्ट रेजिंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टेट के रिस्पॉन्स के वेट में हमने वी लेट पीपल सफ़र, लेकिन हमने 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 वी प्रोवाइडेड इमीडिएटली, बट एट द सेम टाइम वी kept following up with the state officials, with the state systems, and they had to respond. So स्टेट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही हैं, उनको फ्लैग करना ज़रूरी है। हायर ऑफिशियल्स को ये मालूम होना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे सच्चाई क्या है, कैसे हो रहा है। उसके बाद हमें हाथ तो बटाना ही है, हमको तो लड़ना ही है साथ में आके। आई थिंक ये कोई देयर इज नो फिट फार्मूला की संस्थाएं जो है। आई थिंक एक अभी वी हैव अ क्वेश्चन, एंड इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन सपोर्टिंग अस विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अमेजिंग ट्रस्ट, आई वुड से जो जो भरोसा आपका हमारे ऊपर है, आप कई सालों से वी हैव बीन सपोर्टेड बाय बाय देम। अगर वो भरोसा ऐसा क्यों है, जब गरीब व्यक्ति आता है, सवाल गरीब व्यक्ति का आता है, तो हमारे सारे शक, सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मैंने एक एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, कैसे कम्युनिटी के लोगों ने पूरा राशन, मतलब वो 300 परिवार का खाना था, जो है एक उनको 300 परिवार के लिए 15 दिन की सप्लाईज थी, जो उन्होंने आसपास के दूसरे परिवारों में बांट दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, एक दाना भी नहीं रखा। तो उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आई? मुझे लगता है दो तरीकों से। एक, उनकी अपनी ईमानदारी, उनकी अपनी कंपैशन जो उनके अंदर था, उनकी एबिलिटी टू फील द पेन जो लोग उनके आसपास भूखे थे, वो। दूसरा, शायद कुछ हद तक इस बात का कम्युनिकेशन जो उनके पास था, उनको इस बात की जानकारी थी, वो देवर एश्योर्ड कि लोग हैं हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं।
नोइंग कि हम अकेले नहीं हैं हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है। नोइंग कि मेरा कल जब खाना खत्म हो जाएगा तो मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मुझे उसने मुझे ये ताकत दी कि मैं आज मेरा जो सरप्लस खाना था मैंने किसी और को दे दिया। आई थिंक आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशंस जो डिग्निटी के साथ दे रही हैं, आई एम नॉट, आई मीन आई कैन नॉट से कि लोग जो दे रहे हैं वो या जो मतलब काम कर रहे हैं वो गलत है। सबके अपने अपने रीजंस हैं, जैसे मैंने कहा कि लोगों के आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी नेगोशिएट करने की होती है, जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, एंड देन वी पास दैट ऑन टू आर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के साथ में। क्योंकि हम नहीं बता पाते हैं कि क्यों ज़रूरी है इस तरह से हम रिकॉर्ड्स के और हम एविडेंस के चक्कर में हम आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास लाखों रुपए का हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है, हमें इतने बड़े अमाउंट्स लोग देते हैं हमें रिलीफ वर्क कैरी आउट करने के लिए, क्या वो एक थोड़े अमाउंट के लिए भरोसा नहीं कर रहे होंगे या कर पाएंगे? आई थिंक ये सोच की बात है, ये हमारी अपनी मजबूती की बात है, और इसकी कीमत भी होती है हमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा अच्छा होता है, काफ़ी बार इनफैक्ट मैंने एक बार तो अपनी टीम कहा था कि आप लोग यार मुझे ऐसे प्रपोजल से हटा दिया करो क्योंकि मैं नुकसान कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, पैसा आने वाला होता है और मैं शर्तों पे ऐसे बात करता हूँ कि पैसा नहीं मिलता है, फिर हम सबको काम करने में परेशानी होती है, तो आप मुझे हटा दिया करो। आई एक्चुअली फेल्ट कि मे बी आई एम अ हिंड्रेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, टू द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। लेकिन मुझे गलत नहीं लगा कभी खुद की वो पोजीशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी माई एंटायर टीम सेड नहीं, दिस इज व्हाट आवर अप्रोच इज, दिस इज व्हाट आवर पोजीशन इज। अगर लोग हमें इन शर्तों के साथ पार्टनर करने के लिए तैयार हैं तो हम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी हैज अ लिमिटेड सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस। और ऐसे मुझे लगता है संस्थाओं की डिग्निफाइड तरीके से मदद पहुंचाने की जो काबिलियत है, उनकी क्षमता है, वो भी हम लोग ही ग्रो करते हैं। अगर हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, अगर हम उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि नहीं आप कीजिए, तो शायद वो भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। रिस्क इन द सेंस यू नो कि हम हमारे ऊपर कैसे सवाल आएंगे, हमारे ऊपर डाउट्स होंगे क्या, या हम कैसे स्ट्रक्चर्ड नॉर्म्स से अलग जा सकते हैं। बट देयर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड हैविंग सेड दिस आई एम नॉट सेइंग जो लोग मैंने पहले ही कहा कि सभी लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से बहुत बेहतर करना चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं कि उनकी मदद हो। सवाल सिर्फ मेरा यहाँ पर इतना है, जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि हम इसको मदद के दायरे से बाहर ले जाएं, हम इसको अपनी एक जिम्मेदारी के दायरे में लाएं। हमारे हालात दूसरे के हालात से थोड़े बेहतर हैं, किसी के बहुत बेहतर है, तो जब हमारे हालात बेहतर हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर उसको मदद नहीं पहुंचा रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हों। और जब जब हम इस अप्रोच से जाएंगे तो हमें हमें किसी भी तरह के फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होगी क्या हम डिग्निटी। हमें हर वक्त ये सोचना है, अगर मैं एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बोलूँगा। मुझे जिस वक्त हमने काम शुरू किया था बहुत परेशानी आई सामने। अ, ऐसा भी आया था जब आज मैं बहुत आसानी से याद कर लेता हूँ उस टाइम को। खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो एक दौर बड़ी तकलीफ में गुजरा। लेकिन आज जब मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो उस टाइम की मुझे एक ही बात याद आती है। और उस वक्त पे मैंने किसी से नहीं बताता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी से मदद नहीं मांगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस दिन मैं मदद मांगूंगा वो मेरी आउट बाउंड्री बन जाएगी, मैं उसके बाद उससे आगे प्रेशर में ले ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है। एक ऑफिसर हुआ करते थे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में जहाँ हम काम करते थे, बेगर्स होम में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं भूखा नहीं रहूं, लेकिन कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो खाना मंगा रहे हैं कि मैं भूखा हूँ।
उन्होंने कभी मुझे लंच के टाइम पर खाना नहीं खिलाया। उन्होंने हमेशा बहाने से किसी और टाइम पे कुछ करके बोला इसको ये बहुत पसंद है ना, तुमको ये खाना है ना, उस तरह से करके वो हमेशा देखते थे मैं कहीं चला जाता हूँ। तो देर आर वेज दैट पीपल डू, और वो और शायद वही हमें याद रहता है। तो आई थिंक जब हम सारे लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद पहुंचाने के लिए इस वक्त को वो फेस कर सकें, आई थिंक लेट अस ऑल डू इट इन अ वे कि लोग इसको इस तौर पे याद रखें कि बुरा वक्त था और लोग हमारे साथ थे। उनकी सिर्फ एक ही ये याददाश्त हो कि बुरा वक्त था, लोग हमारे साथ थे और हमने उसको निकाल लिया। आई थिंक there's another there's one some okay there is thing about making government do, I think सवाल करना ज़रूरी है। हम सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग सवाल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू डू what they are able to do, they are trying to do। uh, uh, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ सब बात गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि एफसीआई गोडाउन से एनजीओज राशन खरीद सकते हैं लोगों में बांटने के लिए। दिस इज़ नॉट कमिंग इन द स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप। एक अभी एक सवाल है पुलिस एट्रोसिटीज़ और ह्यूमिलेशन के ऊपर। आई थिंक जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आपने इसको वॉर बना दिया है, तो वॉर बना दिया है तो वॉर में वॉरियर्स होंगे, वॉरियर्स होंगे तो फिर वेपन्स होंगे, वेपन्स होगा तो वेपन्स का यूज़ होगा। एक ह्यूमन सिचुएशन को हमने एक जो है एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बना दिया है। इट्स नॉट अ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वी आर नॉट इन अ वॉर। जैसे किसी कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन में लोग रहते हैं, एक एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, और एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सज़ा काटने के लिए आते हैं। दोनों जगह पर उसी केयरटेकर को, उसी कांस्टेबल की आप ड्यूटी लगा दीजिए, दोनों जगह पे रेस्पॉन्स अलग होगा। ओल्ड एज होम में वो झिझकेगा, मारने से पहले नहीं मारेगा, ज़्यादातर लोग नहीं मारेंगे। उनको लगेगा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, ये यहाँ इसलिए आया है। वही उसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप जेल में डाल दीजिए, ठीक है, आप किसी ऑफेंस की जगह पर डाल दीजिए, उसने किया हो या ना किया हो, लेकिन वहाँ पे मारने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि हमको लगता है ये डिजर्व करता है ये। तो जब हम वॉर सिचुएशन में हैं तो हमारे आसपास एनिमीज हैं, हमारी लैंग्वेज वही है। वाई डू यू थिंक पुलिस इज बीटिंग अप पीपल? बिकॉज दे नो दे कैन डू दैट, दे नो कि ये एक दिन मैं देख रहा था कुछ महिलाएं हैं, वो शायद जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरने गई थी, तो समवेयर इन राजस्थान, और एल्डरली वुमेन, और पुलिस ने कैसे उनको उठक बैठक कराया थी, मतलब इट वाज सो डिस्टर्बिंग। ये इतनी एब्सोल्यूट पावर हमें कहाँ से महसूस होती है अपने अंदर कि हम ये कर सकते हैं? एक बड़ी वजह तो उसकी खामोशी है, दूसरा जनरल लोगों की खामोशी, दूसरा जो मैंने पहले बात कही थी, दिस इज व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर्स, वायलेशंस बिकम नॉर्मल, वायलेशंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ह्यूमिलिएशन जो है एक्सेप्टेबल होती है। अगर आप किसी को टोकेंगे, तुमने यार कैसे तुम खाना बांट रहे हो, ऐसे धक्का क्यों दिया, धक्का मत दो, भूखा है वो इंसान, वो बोलेगा अरे सर इतने सारे एक साथ आ जाते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, यू विल एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट। तो ह्यूमिलेशन जो एक्सेप्टेबल बन जाती है, वायलेशंस जो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसलिए आप और हमारे से लोगों के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है कि हम गलती से भी ऐसी कोई बात ना करें, ऐसी कोई चीज़ ना कहें जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचे। ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है वो, बहुत तकलीफ में है। हम शायद अपनी किसी बात से परेशान होके अपने आ, हम कहीं से थक कर आ रहे हैं, परेशान हैं, हमको लग रहा है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन
आप शायद सबके लिए खाना लेके गए, आपको पता है आप सबको देंगे, लेकिन जो लेने के लिए खड़ा है उसको नहीं पता है, क्योंकि उससे पहले जो लोग आए थे खाना खत्म हो गया और चले गए, इसको नहीं मिला, या इसने देखा इसको मिला था किसी और को नहीं मिला, इसने देखा। इसकी नॉलेज में इसकी जो जानकारी है वो ये है कि ऐसा होगा कि खाना खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। वो कैसे जल्दी नहीं करेगा, कैसे नहीं हड़बड़ाएगा वो। तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम कम्युनिकेट कर दें, आप परेशान मत हो, सबको खाना मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। वंस पीपल नो दैट, क्यों क्यों लड़ेंगे, क्यों कूद पड़ेंगे भाई आपके ऊपर में। वी हैव बीन डूइंग इट, हमारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, नोबडी हैज डन दैट। इनफैक्ट ने तो पूरे पिछले 4-5 हफ्तों में जो 40-50 दिन अभी हुए हैं लॉकडाउन के, और उससे 2 हफ्ते पहले से वी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग खाना, एंड इट हैज बीन डन लार्जली बाय कम्युनिटी वॉलंटियर्स। लोगों के ही हाथ में दिया और बोला आप बांटिए। कोर क्रक्स है यहाँ पे कि हम, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक कम्युनिकेट करें लोगों को कि आप अकेले नहीं हैं, आप परेशान ना हो। वंस दे नो दैट दे विल बी रिलैक्स। जो एंजाइटी है, हाउ डू यू एड्रेस दैट एंजाइटी। मालूम नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है यहाँ पे, हमको मालूम है बट हम सोच रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए, उसको नहीं मालूम होगा। दूसरा, भरोसा। आई थिंक वी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस। वी वी हैव टू वी हैव टू ट्रस्ट पीपल, वी हैव टू ट्रस्ट पीपल, वी हैव टू लीव इट। हम बहुत सारी संस्थाएं बात करती हैं डिसीजन मेकिंग की, कम्युनिटी एम्पावरमेंट की, डिग्निटी की, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो सारे डिसीजन हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। क्यों? लेट्स नॉट डू दैट। लेट्स नॉट ट्रीट पीपल लाइक नंबर्स। लोग हमारे रिकॉर्ड्स में नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो लोग, उनकी अपनी जिंदगी में वो नंबर्स नहीं है, वो जीते हुए इंसान हैं, और वो, ये वक्त उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। आई थिंक इवन नोइंग समबडी, भले ही वो भूखा भी रहेगा, दैट पर्सन नोज कि किसी ने मुझे भरोसा किया था। somebody came and asked me how are you doing, okay, are you okay, आप ठीक हो। आई थिंक उसकी भी बहुत बहुत रेलेवेंस है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन साइंटिफिक टर्म्स, बट आई थिंक दिस हैज वर्क फॉर अस, वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सिर्फ डर निकालना, डर का एनवायरनमेंट खत्म करना, भरोसा देना, हमारे लिए इससे बेहतर किसी और चीज़ ने काम नहीं किया है। दिस इज़ वॉट हैज़ वर्क मोस्ट फॉर अस। लोगों का एनजाइटी दूर किया, और एक भर दिया कि हम आपके साथ हैं। दैट्स ऑल। आई थिंक ट्रस्ट किया, और उनको बताया कि आप, हम आप पे भरोसा करते हैं, हमें आपकी फ़िक्र है, बस। अगर मैं कुछ नहीं भी कर सकता हूँ तो भी मैं उस इंसान को इतना तो बता ही सकता हूँ कि मुझे आपकी फ़िक्र है, और वो मैं बताऊँगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज का वक्त, ये महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ये निकल जाने वाला है, या इसका रेलेवेंस इतना ही है, तो शायद बात सारी टर्म्स में ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल का होगा रेलेवेंस, गवर्नेंस के टर्म्स में, इकोनॉमी के टर्म्स में, पब्लिक हेल्थ के टर्म्स में। लेकिन लोगों की जो मेमोरी क्रिएट हो रही है, जनरेशन्स के लिए क्रिएट हो रही है, आज जो यादें बन रही हैं वो जनरेशन्स तक उनको याद रहने वाली हैं, वो शेयर होने वाली हैं। सो मेरी लास्ट में आई जस्ट वांट टू मेक एन अपील कि ऑल ऑफ अस, प्लीज प्लीज make an effort to make these memories as positive as possible, ताकि बच्चे जब बड़े होकर इस वक्त को याद करें तो उनको शर्मिंदगी ना हो, उनको उनको हेल्पलेसनेस ना फील हो, वो दुख में ना रोएं, वो इस खुशी में रोएं कि नहीं, परेशानी तो बहुत बड़ी थी लेकिन लोग भी वैसे ही थे, हमारी हिम्मत भी इतनी बड़ी थी। आई थिंक दैट्स व्हाट, एंड इट्स समथिंग एक्सट्रीमली डुएबल। सो
think if there is anything we are running, we have kind of crossed our time. So, is there if I've been responding to the questions जो यहाँ पर आ रहे थे. So I think we'll need to close now. So if there is any अगर कुछ लोगों के कुछ comments हैं, एक दो अगर कुछ सवाल है, something very specific, so I can try answering that. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग जुड़े और मेरी बातों को सुना. आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल टू यू.